मैं सौरव गांगुली का एग्जांपल देता हूँ, पता है सिलेक्शन कैसे करते हैं? सौरव गांगुली बोलता है ये प्लेयर बहुत अच्छा है। मैं पूछता हूँ कैसे दादा, कैसे आपने कह दिया ये पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा है और ये अच्छा नहीं है? बोलता है शुभमन से पहले खेलेगा पृथ्वी शॉ। मतलब कैसे बोल रहे हो दादा? बोलता है खेलेगा भाई। बोला कैसे? बोलता है तड़ी से खेलता है। तड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दादागिरी होनी बहुत, खेलना ना तड़ी से मारना। बोलता है देखो मारता है ये। बोलता है कोई भी मिचेल स्टार्क को कोई मारता है ये। Hello and welcome to the second episode of All Things Cricket by the 12th Man. I am your host Ujjwal Sachdeva, and it is an absolute honor to call myself the host in the presence of one of India's most reputed, most prominent cricket faces, Sameep Rajguru. It is an honor to have Sameep Rajguru. He has been the talk show host of Cricket Ki Baat for multiple years. He's a commentator at ISL with Star Sports presently and has been a sports presenter for years. About how he describes himself, he calls himself the perennial backbencher, and most of you might even know him as Guru Ki Googly. So it is an absolute honor to have you, sir. Welcome to the show. थैंक यू उज्जवल, बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। और पेरेनियल बैक बेंचर्स जो होते हैं वो वैसे ही थोड़े शर्मीले होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन देकर तुमने मेरे पर ना प्रेशर डाल दिया स्टार्टिंग में। अच्छे कैप्टन होते हैं अगर टीम इंडिया में या क्रिकेट खेल रहे होते तो ऑपोजिशन पे पहले ही प्रेशर डाल दो। Thank you so much, sir. So, sir, we plan to do this in 3 segments. Initially, I will just be asking you your opinion on cricket and on sports journalism and presenting. And after that, just some opinions on Indian cricket and your picks, right? So, even before I get to any questions, one thing I have to ask you. I have seen Sameep Rajguru, the talk show host on Cricket Ki Baat. I've heard this phrase Cricket Ki Baat Sameep Rajguru ke saath for years. I've seen you as a sports presenter. I've seen you as a commentator at ISL. And I've seen you do so many things. I don't want to list them right now. Just my simple question to you. Who is Sameep Rajguru? What is that part that you love the most? यार एक तो इतनी तारीफ कर दी तुमने उज्जवल, मतलब अब मैं क्या बोलूं। Who is Sameep Rajguru? Sameep Rajguru is just a simple man. He's sitting right in front of you. I'm one of those guys who are, you know, I'm like a normal fan. First thing, what Sameep Rajguru is just a fan of sports. It's not just cricket. मैं क्रिकेट का ही फैन नहीं हूँ, मैं फुटबॉल का भी उतना ही बड़ा फैन हूँ, मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स का भी उतना ही बड़ा फैन हूँ। और समीप राजगुरु के लिए लाइफ हैज बीन स्पोर्ट्स। तो शायद मेरे को इसलिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि स्पोर्ट्स में जब मैंने प्रेजेंटेशन शुरू की या स्पोर्ट्स के शोज करने शुरू किए। तो समीप राजगुरु एज मैं अपने आप को, जब मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि द लव फॉर स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्ट्स आई प्लेड इन माय लाइफ, वो समीप राजगुरु है, नथिंग एल्स। माय सोल इज स्पोर्ट्स। तो उसकी वजह से जो भी मैंने किया, जो भी रिकॉग्निशन मुझे मिली, किसी को मेरे शोज पसंद आए, किसी ने क्रिटिसाइज भी किया, सब कुछ होता है, बोथ साइडेड होता है। लेकिन मेन रीजन अच्छा करने का शायद यही था कि स्पोर्ट्स मेरे रगों में ना खून में ही स्पोर्ट्स दौड़ता है। तो वो वाली बात है, जैसे आपके भी वही हो रहा है आजकल। मैं देख रहा हूँ आप भी बहुत बड़े एंथुसियास्ट हो, बहुत अच्छे से क्रिकेट के मैं ब्लॉग्स भी देख रहा था। यू हैव रिटन वेरी वेल and your enthusiasm, you remind me of myself, you remind me of a lot of other sports journalists or sports presenter at this age, 19-20 में जो थे वो ऐसे enthusiastic थे। So that's how I describe myself, someone who loves sports, someone who's got sports in himself, in his soul. That's it, nothing else. That is quite an answer, sir. My question to you after you've said this, that you were just a fan of cricket and you've never had a problem presenting just because of this enthusiasm. And this is something I personally want to ask you as well. For all those budding sports journalists, sports commentators out there, your single piece of advice to them about how to take their way through this. See, there cannot be one single piece of advice or anything like that. The single piece of advice, if you ask me, you'll have to like Amitabh Bachchan said, I talk English, I walk English, or something like that. No, so that's what sports has to be in your life. And if it is like that, if you live sports, तो अगर sports तुम्हारी जिंदगी है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. It is very simple, like what we saw in Three Idiots or any other movies. I keep giving examples of movies a lot actually. So if you see, if it is your passion, one piece of advice यही होता है कि आप अब उज्जवल, फॉर एग्जाम्पल,
you have studied so much about cricket. You've done a research on cricketers. Rohit Sharma. I was reading your blogs. Fantastic. तो ये सब जो पढ़ते हो तो वो किस लिए पढ़ रहे हो? क्योंकि you like it. Yeah. You want to know what's special about Rohit's cover drive and what's special about Virat's cover drive. What is the difference between the two drives? Both of them scores, both of them are effective. लेकिन फर्क क्या है दोनों के बीच में? तो यही चीज है. आप अपने पैशन के साथ जियोगे तो एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस की अगर बात करें तो सिंगल पीस ऑफ एडवाइस कुछ नहीं है. आप अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से डेडिकेटेड रखोगे उस पैशन की तरफ, अपने पैशन की तरफ, तो सक्सेस विल कम टू यू. यू विल नॉट इवन कम टू नो दैट सक्सेस हैज कम टू मी, बिकॉज you will enjoy what you are doing. एक शो किया, आज आपने एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर के साथ इंटरव्यू किया, कल आप एक इंडिया प्लेयर के साथ कर रहे हो, कल आप इंडिया के स्टार के साथ कर रहे हो, कल आप इंटरनेशनल स्टार के साथ कर रहे हो, फिर आप सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू कर रहे हो, फिर आप ब्रायन लारा का इंटरव्यू कर रहे हो, फिर ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर को एक साथ कर रहे हो. यू नो, सो योर ड्रीम्स कीप ग्रोइंग. आप अपना काम करते रहो. आप ये मत सोचो कि क्या करना है. अब याद आया, पूछा है तो अब मैं अपने पॉइंट पे पहुंचा हूं. सिंगल पीस ऑफ एडवाइस में सोचो मत, अपने काम पर ध्यान दो, सोचो मत, करते जाओ. परफेक्ट. ओके सर, अब आपने इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को इंटरव्यू किया है, इतने सारे क्रिकेटर्स, यू बीन द मीडियम फॉर देम टू कम्युनिकेट विद देयर फैंस, इतने सारे लोगों से आपने इंटरेक्ट किया है. व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट डूइंग दिस? यू गेट, say you've gotten Saurav Ganguly in touch, you've gotten Ravi Shastri in touch with their fans so many times. What according to you is the most special thing about doing this? For me, yeah, जितने बड़े स्टार्स होते हैं ना, उनके साथ बैठो ना, एक मतलब इट्स नॉट व्हाट यू हैव आस्क्ड, बट पर्सनली व्हेन यू सिट विद देम, जब आप सौरव गांगुली के साथ बैठो, हरभजन सिंह के साथ बैठो, आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठो, महेंद्र सिंह धोनी के साथ चाय पियो, इट्स वन ऑफ माय बेस्ट मोमेंट. वो जब भी जाता है चाय जरूर पिलाता है रूम में. हाँ, तो इनके साथ बैठो ना, जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं और जो सक्सेसफुल प्लेयर होते हैं. बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. लेकिन टैलेंट, हार्डवर्क का जो मिक्स होकर जो विराट कोहली बनकर आता है, सचिन तेंदुलकर या फिर रवि शास्त्री, इनके साथ बैठो तो एक पर्सनल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि यू फील वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ. दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव पीपल. उनके साथ बैठो तो यू विल रियलाइज देयर ऑरा अराउंड देम, देयर इज सम ऑरा अराउंड देम. You will feel कि हाँ, इस बंदे में कुछ खास है. And when you sit with them, Kapil Paji, I've spent a lot of time with Kapil Dev. You know, he's like my guru. He's been my mentor when I was working in early 2000 and 99 and 98. We used to do interviews with Kapil Paji. Kapil Paji was the first interaction for me with a big star. And I was actually overawed for a good few months. You know, Kapil Paji आते थे तो हाथ पांव शेक करने लगते थे. तो बहुत कुछ सिखाया उन्होंने. इनका ऑरा ऐसा है कि इनके साथ बैठोगे तो एक चीज, वही अगर सिंगल पॉइंट पे आ जाऊं तो एक चीज जो मैंने रियलाइज किया ना, इनके साथ बैठकर उज्जवल ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सेम फीलिंग आ रही है सर अभी. Okay, sir, again when I'm talking about you interacting with sports persons, मेरा simple question आपसे है कि is there a defining characteristic, defining attribute that can tell you that, जैसे आप ऑरा की बात कर रहे हैं, that this person will be a successful cricketer, somebody talented not yet successful, something that tells you that he has it or she has it in him or her? नहीं, बिल्कुल देखते ही पता चल जाता है. वो क्या कहते हैं उसके, कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं. बिल्कुल पता चलता है, किसी को भी देखकर पता चल जाता है. और सबसे बड़ी चीज आपको ही पता चल जाता होगा उज्जवल, अगर आप मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, राइटर, स्पोर्ट्स कॉलम लिखने वाले एक अच्छे ऑथर भी बन सकते हो, बुक्स लिख सकते हो. आपको भी देख के मुझे लग रहा है कि यू हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू गो अहेड एंड डू गुड थिंग्स फॉर क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स आल्सो. तो देखिए, प्लेयर को देख के सबसे पहले यही, जैसे देखो, जैसे कुलदीप यादव को देखा, अभी लेटेस्ट एग्जांपल, कुलदीप यादव को देखा, कुलदीप की एक गलती होती है तो यू कैन सी हाउ, I won't say irritated, but he's really restless कि ये कैसे हो रहा है मेरे से, इसको जाके मैं कैसे ठीक करूं. He takes advice from the best, he takes advice, बच्चों की भी सुन रहा है, सुन सबकी रहा है, और आके नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा है. तो पता चल जाता है. जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खासकर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे मैं हूं या आप हो, कल अपने जो वो है कमजोरियां हैं उस पे काम करने से कोई नहीं चूकता. जाते हैं, काम करते हैं और घंटों भर काम करते हैं. मैं आगे हम बातचीत में एग्जांपल दूंगा. मैं टॉनी नडाल से मिला था, जो कि राफा नडाल के कोच हैं.
तो उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। तो वो जो लगातार जो हार्डवर्क की वो है ना आदत है, वो देख के पता चल जाता है प्लेयर इसमें टैलेंट कितना है, इसमें हार्डवर्क, इसमें डिसिप्लिन कितना है, ये आगे कितना जाएगा। हम लोग जितने जर्नलिस्ट थे, हम लोग प्लेयर्स को देखते थे, यंगस्टर्स आते थे, हमें पता चल जाता था ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा, पता चल जाता है। मतलब आई एम स्टिल एक्टिव, आई गॉट अ फ्यू इयर्स टू रिटायर। सो तो तो क्या है कि पता चल जाता है ये प्लेयर पार्टी में गया, ये नहीं गया, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। ये शाम को जल्दी सोया, टाइम से सोया या नहीं, राइट टाइम पे उठाया या नहीं, किसके साथ ये ब्रेकफास्ट कर रहा है, किसके साथ ये लंच कर रहा है, सारी चीजें दिखती हैं उसमें प्लेयर में कि कितनी भूख है उसमें। Right. And one last question in this segment, right out of your Twitter handle, you've mentioned how cricket being a non-contact sport should resume, considering that most non-contact sports are being resumed right now. So your take on that, A, and B, your take on the future of cricket after this pandemic. Cricket should resume. I feel cricket should resume now, but at this point of time, India is exploding with this pandemic. Yeah. India's graph is actually going up. तो थोड़ा सा रुक जाते हैं. एक महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, maybe by end of July, we should resume. We should start planning how we should resume our cricket. What are our plans? In fact, the BCCI, the top brass is already they're having lots of meetings. आपस में बातचीत चल रही है. तो cricket resume होना चाहिए क्योंकि non-contact sport है. और क्रिकेट तो शुरू हो ही गई है. इंग्लैंड में भी कम नहीं हुआ है. वेस्ट इंडीज लैंड हो चुकी है, हमको पता है. और जुलाई में उनका सीरीज है, वो क्वारंटीन रहेंगे. तो क्रिकेट शुरू होना चाहिए. नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है और आराम से हो सकता है. अगर फुटबॉल हो सकता है, बुंडेसलीगा हो सकता है, ला लीगा शुरू कर सकते हैं, तो क्रिकेट क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट हो नहीं सकता. टेनिस है और क्रिकेट है. मैंने शायद ट्वीट में यही लिखा था. टेनिस और क्रिकेट दो ऐसे स्पोर्ट है जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है और आराम से शुरू हो सकता है. तो मेरे ख्याल से क्रिकेट शुरू होना चाहिए. और अगर आप ज्यादा से ज्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो क्या है, स्टेडियम क्लोज डोर्स के में क्रिकेट खेलोगे आप. So I think it should resume by July end. You should see when there's saturation in the pandemic. Coronavirus जो है उसमें saturation आ गया है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है. Then we can probably start. It's going to be about your opinion on certain things. So there's this section of my blog where I ask people about things they may want to ask somebody like you, right? And who better than you to answer some of these questions? So 2 questions that. नहीं ऐसा नहीं है. You can also answer. You are as good. So first thing, alongside Rohit Sharma in limited overs cricket, ODIs and T20s, separately, you think that the better opener is A. Shikhar Dhawan, B. KL Rahul? I will not say what I like, but what I have learned from all the cricketers. You know, I've spoken with a lot of cricketers, star cricketers, about this jodi, who should open. तो मैं उनके हिसाब से जाऊंगा. मैं वो क्या कहते हैं वो आपसे शेयर करूंगा. मेरे ओपिनियन में भी, मेरा भी ओपिनियन उसी के अराउंड जो है फॉर्म हो गया है. और वो है केएल राहुल फॉर्म में है. केएल राहुल बहुत अच्छा है. इट्स गुड. बट एट हिज बेस्ट शिखर धवन शुड प्ले विथ रोहित. लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन. लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन हमेशा ऑपोजिशन को बहुत मुश्किल में डालता है. बॉलर्स को मुश्किल बहुत चैलेंज करता है. हर बार आके अपनी लाइन लेंथ चेंज करो, सोचो. तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाऊंगा. और शिखर धवन एट हिज बेस्ट इज नो लेस. बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली है शिखर धवन ने. और शिखर धवन का जो एटीट्यूड है ना, वो रोहित के साथ बहुत मैच करता है. रोहित है बिंदास, आराम से जाता है ना, लेजी एलिगेंस है, आराम से खेलता है, कोई टेंशन नहीं है. शिखर भी वही और वही बात जो है ना शिखर में भी है जो सामने ऑपोजिशन के अंदर जाती है. स्टिफ नहीं है शिखर, आराम से खेलता है गब्बर, है ना, मुझे को ताव दे के खेलता रहता है. तो वो शिखर में वो बात है, वो स्वैग है, राइट, जो बहुत जरूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में. इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं सौरव गांगुली का एग्जांपल देता हूँ. पता है सिलेक्शन कैसे करते हैं? सौरव गांगुली बोलता है ये प्लेयर बहुत अच्छा है. मैं पूछता हूँ कैसे दादा, कैसे आपने कह दिया ये पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा है और ये अच्छा नहीं है? बोलता है शुभमन से पहले खेलेगा पृथ्वी शॉ. मतलब कैसे बोल रहे हो दादा? बोलता है खेलेगा भाई. बोला कैसे? बोलता है तड़ी से खेलता है. यू नो, तड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दादागिरी होनी बहुत, खेलना ना तड़ी से मारना. बोलता है देखो मारता है ये. बोलता है कोई भी मिचेल स्टार्क को कोई मारता है ये. तो बोलता है शुभमन नहीं मारता है. शुभमन को सेटल होने में टाइम लगेगा और पृथ्वी शॉ मारता है. तो शिखर धवन ज्यादा तड़ी से खेलता है. शिखर धवन के बॉडी लैंग्वेज में भी तड़ी है. और रोहित के तो क्या है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है. तो ये मेरा अगर ओपिनियन आएगा तो मैं शिखर धवन रोहित के साथ मेरा पहला होगा. लेकिन of course form will matter now because Shikhar is also in 33, he's 33 34 now, 34 का हो रहा है.
अपने प्राइम से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि हमें नया कॉम्बिनेशन ढूंढना हो, और केएल इज फायरिंग ऑल सिलेंडर्स राइट नाउ, तो केएल कैन गो, बट माय ओपिनियन विथ ऑल दोज एक्सपर्ट्स, आई थिंक वीरेंद्र सहवाग कहता है कि केएल को खेलना चाहिए, तो शायद वीरेंद्र सहवाग का ये मानना है, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब में वीरू ने बहुत क्लोजली देखा केएल राहुल को, और कि वीरू का मानना है कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत जबरदस्त, चांस दोगे तो केएल विल बी अनस्टॉपेबल, वीरू कह रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, लेकिन मैं शिखर धवन और रोहित के साथ जाऊंगा. Okay. And so now, since it's Shikhar Dhawan, we can't forget ICC tournaments. So next ICC tournament, if everything goes well, it would be the ICC World T20. And one question that has come is, we have a lot of upcoming talent in T20 cricket. We've had Washington Sundar being a bowler. We've had Krunal Pandya. We've had Ravindra Jadeja. Then there is Chahal. There is Kuldeep. Amongst the pacers also, along with Bumrah, Bhuvaneshwar, there's Deepak Chahar, and there are a lot of people coming up. So your ideal T20 bowling attack for this World Cup for India? आइडियल, और अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, मान लेते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और पर्थ की कंडीशंस, मेलबर्न की कंडीशंस और सिडनी की कंडीशंस अलग अलग हैं. भले ही 2020 है, 2020 में विल गेट ऑल दोस बेल्टर्स मिलेंगे, हमें पिचेस मिलेंगे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा बदलाव होगा. 100% है बुमराह विल प्ले, शमी इफ इज देयर, बुमराह शमी विल बी माय स्ट्राइक बॉलर्स, क्योंकि शमी ने जो फॉर्म और जो T20 में अपने आप को रीडिस्कवर किया है शॉर्टर फॉर्मेट में, शमी इज वेरी इफेक्टिव, एंड भुवनेश्वर विल बी माय थर्ड ऑप्शन. और अगर पर्थ में मैच हो रहा है तो डेफिनेटली विद दीस टू. एंड स्पिनर्स में ऑस्ट्रेलिया में आई विल गो विथ, in a place like Perth, I will go with Kuldeep and Ravindra Jadeja. I think Ravindra Jadeja I will play everywhere in Australia. Yeah. So it will be a toss up between Kuldeep and Chahal, Ravindra Jadeja, Kuldeep and Chahal. अगर मेलबर्न में मैच हो रहा है तो आई विल प्ले चहल, क्योंकि स्पॉन्जी बाउंस है. सिडनी में है तो थोड़ा सा लो रहता है, तो आई विल प्ले चहल देयर. बट वेयर देयर इज बाउंस एंड टर्न, मैं वहां पे कुलदीप को खिलाऊंगा. पर्थ में, एडिलेड में भी हो सकता है कि मैं कुलदीप को खिलाऊं. तो मेरा बॉलिंग अटैक यही होगा, जो बॉलिंग मैं लेके जाऊंगा, कुलदीप, चहल एंड जडेजा, एंड शमी, भुवी एंड बुमराह. बूम बूम बुमराह, जो सबको करता है गुमराह है. Okay, one last question in this segment. In all of these years, sir, अभी आपने इतने moments बता दिए, आपने इनसे interact किया, उनसे interact किया. Your favorite Indian cricket memory? My favorite in cricket moment? Yeah, Indian cricket specifically. हाँ, इंडियन क्रिकेट मोमेंट में जो टॉप में है ना, बड़ा छोटा सा बच्चा था, और शायद मेरे एज ग्रुप में जो 40s में है अपने, उनके लिए एक 40s वाला एडिट कर देना, ये है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये पता चल जाएगा सबको एज. तो मेरा जो फर्स्ट मोमेंट है ना, आई थिंक यू कैन गेस इट, इट्स 1983 वर्ल्ड कप. Kapil Paji winning the World Cup, and my dream as a kid, I was in 3rd standard or 4th standard उस समय, ऐसा कुछ था. My dream was कि कभी मैं कपिल देव को देखूंगा. 2 ही ड्रीम थे, कपिल देव को देखूंगा, अमिताभ बच्चन को कभी देखूंगा कि नहीं. दोनों को देख भी लिया, दोनों के साथ काम, मतलब इंटरव्यूज भी कर लिए, और उनके साथ काफी इंटरेक्शन भी हुआ. तो मेरा एक सपना तो बहुत बड़ा पूरा हो गया. और दोनों से जब मैं मिला था, तो मैंने बहुत तरीके से अपने नर्वसनेस को छुपाया. एक बहुत बड़ी बात है एंकर होने में, आप कई बार ऐसे लोगों से मिलोगे जिससे बात करते हुए आपको नर्वसनेस होगी, बट यू विल हैव टू हाइड इट, यू विल हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर नॉट नर्वस, यू आर नॉट ओवरऑड कभी मत होना लाइफ में. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे फ्री हो जाओगे, किसी के साथ भी बात करोगे, दे आर ऑल नाइस पीपल. जितने बड़े लोग हैं उतने हम्बल है, बाय द वे, ये भी मैंने फील किया लाइफ में. तो ग्रेटेस्ट मोमेंट 1983. देन कम्स बेंसन एंड हेजर्स 1986, जिसमें रवि शास्त्री चैंपियन ऑफ चैंपियंस बना, है ना. ये तो हुए बहुत ऐतिहासिक, जिसमें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. बट इन रीसेंट इयर्स, से अबाउट फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम आई विल टेक 2000 कट ऑफ ले लेते हैं, 2000 से आई वुड से नेटवेस्ट 2002 इंडिया वन अगेंस्ट इंग्लैंड, वो व्हाट अ मोमेंट. एंड 2003 वर्ल्ड कप वाज आल्सो रियली नाइस. इट वाज अ ग्रेट वर्ल्ड कप फॉर इंडिया. ऑफ कोर्स वी लॉस्ट द फाइनल्स. There was we knew we were going to lose that finals the day before. I'll tell you how. That comes later. So 2003 World Cup final, and then of course as you go ahead 2007. But overall अगर देखूं सारा 2000 पिछले 20 साल का अगर निचोड़ निकालूं ना, ऐसे निचोड़ूं, तो मेरे ख्याल से 2011
World Cup win. Right. सारे आपने सारे 2011 World Cup win बहुत अच्छे and धोनी का 6 मार के जिताना. Yes. Tops it all. Yeah. Okay. Abhi, whenever you're comfortable, because I am getting very curious about what you said 2003 World Cup की बात. So. अच्छा वो एक स्टोरी थी. हाँ. Yeah. अरे क्या हुआ कि 2003 में जब वर्ल्ड कप फाइनल था. Yeah. वर्ल्ड कप फाइनल था और वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले इवनिंग उस दिन इंडियन टीम वॉलीबॉल खेल रही थी वॉन्डरर्स में, जोबर्ग में. पूरी टीम वॉलीबॉल खेल रही थी, यू नो, विद ऑल वाज द कोच जॉन राइट था ना. हाँ, जॉन राइट था एंड ऑल दोस अपने इंडिया के सारे स्टॉलवर्ड्स, जहीर खान एंड सचिन एंड सौरभ एंड वीरू, दे वर ऑल प्लेइंग वॉलीबॉल मैच इन द स्टेडियम. नेट्स के साइड में वॉलीबॉल खेल रहे थे. तो शाम को खेल रहे थे. इतने में क्या होता है कि पूरी ऑजी टीम वॉक्स इनटू द स्टेडियम और वो वॉक करते हैं. उन्होंने नेट्स नहीं किया, वॉक किया. दे कम क्लोज टू द वॉलीबॉल कोर्ट. They don't talk to any of the players. They look at you. They look at all the players. एक राउंड लगाते हैं वॉलीबॉल कोर्ट का, लाइक ग्लैडिएटर्स जैसे होता है ना रोमन उसमें, है ना, सर्कस मैक्सिमस में जैसे एक ग्लैडिएटर दूसरे ग्लैडिएटर के राउंड वो लगाता है. सारे लोग इंडियन प्लेयर्स को ऐसे देखते हैं, सारे प्लेयर्स, मैथ्यू हेडन वगैरह. और इंडियन प्लेयर्स दे स्टॉप प्लेइंग. उन्होंने खेलना छोड़ दिया और चुप हो गए सारे. They were silent. They were waiting for Aussies to go. वो जो ऑरा था ना ऑस्ट्रेलियन टीम का, यू कुड फील दैट इंडियन टीम एक दिन मैच से पहले ही आके उन्होंने माइंड गेम खेला और इंडिया पर प्रेशर डाल दिया. एंड यू कुड फील कि ये क्या हो गया, इंडियन टीम शांत कैसे हो गई. इंडियन प्लेयर्स स्टॉप्ड इंटरैक्टिंग, आपस में बात करना बंद कर दिया, चुपचाप खड़े हो गए, बॉल लेके इधर उधर देखने लगे. यू नो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल टीम और बड़े क्लास 12 के लड़के आ गए 5th के बच्चों के सामने. तो एक ऐसा माहौल था वो, और विच मेड अस फील कि ये तो बहुत गड़बड़ है. ये तो इंडियन टीम में एक अलग ही एक फियर, एक वो डाल दिया. ऑजीज आए और ऐसे वॉलीबॉल रिंग के, वॉलीबॉल कोर्ट के अराउंड घूमे और वापस चले गए. दे डिडंट स्पीक. एंड बाय द टाइम ऑस्ट्रेलियन टीम वाज अराउंड, एक भी इंडियन प्लेयर आपस में बात भी नहीं कर रहा था. दे वर सडनली क्वाइट, वेट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन जाए. तो एक बॉडी लैंग्वेज जो था वो उसी समय दिख गया था कि आप अंडर प्रेशर हो ऑस्ट्रेलियंस के सामने. और वही हुआ नेक्स्ट डे. जहीर खान को देख लो क्या हुआ फर्स्ट ओवर. उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने क्या किया वो तो देखा होगा. इतने जहीर खान ने एक्चुअली बोला था इसका रीजन कि वो जब नेशनल एंथम होता है उसके बाद एक अलग एंथुसियाज्म आ जाता है एंड यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस. लेकिन वो शाम जो थी ना वॉलीबॉल कोर्ट के अराउंड, जिसने उस शाम को देखा काफी जर्नलिस्ट थे हमारे जैसे, जिसने शाम को देखा इस वॉलीबॉल कोर्ट के अराउंड क्या किया ऑजी टीम ने और क्या इंडियन टीम की प्लेयर्स की हालत थी, उसी दिन ऐसा लग रहा था कि कल क्या होगा तो सोचने की जरूरत नहीं है. राइट. Quite an interesting story there.